آپ کو آج کا پیٹرول کا ریٹ پتہ ہے؟ آج 1 لیٹر پیٹرول کیا پرائس ہے؟ میرے خیال 200 پیٹرول میرے خیال 260 یا اس طرح سے ہو گیا ہوگا. سر پیٹرول کی قیمت کیا ہے آج؟ یہ سروے کر رہے ہیں. پیٹرول کی قیمت ابھی 15 روپے کم ہوئی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ مطلب کافی ڈیکریز ہوا. آج پیٹرول کا جو ریٹ 1 لیٹر وہ کیا ہے، وہ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں مجھے نہیں پتا. قیمت پتہ ہے 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت کیا آج؟ میں نے پیٹرول کبھی ڈلوایا نہیں خود ایکچولی. کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1 لیٹر پیٹرول آج کس قیمت پہ مل رہا ہے؟ 274-75 روپے ہے یا 278 سم تھنگ ہے. پیٹرول ہے آج، اس کی قیمت کیا ہے 1 لیٹر کی؟ یار یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر بندے کو معلوم ہے جو اپنے جیب سے ڈلواتا ہے. یہ سرکاری بندوں کو نہیں پتہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عثمان خادم کمبو، پنجاب اسمبلی کے اندر آج موجود ہوں. 2 سوال ہوں گے اراکین اسمبلی سے. پہلا سوال کہ حد تک عزت کا جو کیس پنجاب اسمبلی میں لایا جا رہا ہے، جو بل لایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے مندرجات کیا ہوں گے، اس کے فوائد کیا ہوں گے، اور ایک صحافی کو اس سے نقصان کیا پہنچ سکتا ہے؟ اور دوسرا ایک سروے کہ کیا ہمارے اراکین پنجاب اسمبلی جانتے ہیں کہ پیٹرول کی آج کی فی لیٹر قیمت کیا ہے؟ یہی سوال ہوں گے. چلتے ہیں اراکین اسمبلی کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں. جی، مسلم لیگ نون سے سعدیہ تیمور صاحبہ ہمارے پاس موجود ہیں، رکن صوبائی اسمبلی ہیں. ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. میم، حد تک عزت کے حوالے سے بل آ رہا ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا یہ کیا بل ہے اور اس کے اندر کیا جو ہے وہ مسائل ہیں صحافیوں سے یا کوئی بھی شخص جس کے خلاف یہ بل استعمال ہوگا؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ حد تک عزت کا جو بل ہے میرے خیال میں یہ بہت خوش آئین ہے، کیونکہ جس طرح سے سوشل میڈیا پہ کسی کے بارے میں بھی کوئی بات ہم کر دیتے ہیں تو دیکھیں ہر شخص کے ساتھ اس کی فیملی ہوتی ہے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو ہر کسی کو بات کرنے کی آزادی ہے، تو کیا دوسرے لوگوں کی آزادی نہیں کہ وہ بھی آپ کے اوپر ایسے بات کریں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کلچر میں اتنا زیادہ بگاڑ آ گیا کہ پہلے ہم دوسروں کی خواتین کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر کی عورتوں کی طرح ہے، اور صرف اس طرح نہیں، ہم کسی کے بارے میں بھی جیلس ہو کے کوئی بھی بات کر دیتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے ضرور پرابلم ہوگا جن کا روٹی اور روزگار کا سارا جو یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بے عزت کر کے اپنی روٹی کمانے کے چکروں میں ہوتے ہیں، ان کو پرابلم دے گا. ایک عام اچھا جرنلسٹ جو کہ تحقیق کر کے اپنی خبر بناتا ہے، آئی تھنک سو کہ اس کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک بات کی. آپ پہلی ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کا لفظ استعمال کیا، ورنہ سب تو میڈیا والوں کو ہی ہمیں ہی جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کہتے ہیں. یہ فرق ہے. جو جرنلسٹ ہیں ان کی بھی تو آگے سے کیٹیگرائز ہم ان کو کرتے ہیں. جو جینون صحافی ہیں وہ تو بڑے محتاط ہوتے ہیں. اوبویسلی ان کے اداروں کی پالیسیز ہوتی ہیں، ان کی اپنا بھی ایک رسپیکٹ کا ہوتا ہے ذکر کہ وہ اپنی ساری گڈ ول تو نہیں خراب کرتے. یہ ہمارے بچے جو سوشل میڈیا پہ آئے ہیں، یہ پی ٹی آئی نے بھرتی کیے تھے بہت بڑی تعداد میں، اور ان کو یہی ٹاسک دیا تھا کہ آپ نے جتنا زیادہ گالی گلوچ کریں گے، بلکہ ہم نے تو ان کا نام ہی گالی گلوچ بریگیڈ رکھا ہوا تھا، جتنا آپ کسی کو بے عزت کریں گے اتنے آپ کو پیسے ملیں گے. تو وہ جو کلچر ہمارا خراب ہو گیا، میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں لازمی اس کے اوپر کوئی سخت پالیسی بنانی پڑے گی تاکہ معاشرہ بگاڑ کی طرف نہ جائے. جی ٹھیک ہوگا. ایک ہم چھوٹا سا سروے کر رہے ہیں صرف اراکین اسمبلی جو ہے ان کے ساتھ. آپ کو آج کا پیٹرول کا ریٹ پتہ ہے؟ آج 1 لیٹر پیٹرول کیا پرائس ہے؟ میرے خیال 200. اب یہ تم بنانے لگے ہو. 15 آج جو ہے پیٹرول 15 روپے کم ہوا ہے، 15 روپے 50 پیسے. 1 لیٹر کی کیا قیمت ہوگی آج؟ آپ نے پیٹرول ڈلوایا نا؟ ابھی میں مائنس اس میں سے کر لیتی ہوں، اور میں تو جسے کہتے ہیں گروسری بھی خود لیتی ہوں اور سارا کچھ کرتی ہوں، تو پیٹرول میرے خیال 260 یا اس طرح سے ہو گیا ہوگا. چلیں بہت شکریہ. ٹھیک ہے. مس سعدیہ تیمور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. انہوں نے ڈیفیمیشن کے حوالے سے جو بات کی وہ ایک بڑا جینون پوائنٹ انہوں نے اٹھایا کہ جو تحقیق کرنے والا صحافی ہے، جو شہری ہے، اس کے خلاف اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا، اور جو غلط صحافت کرے گا اس کے بارے میں پھر ایکشن لیا جائے گا. جی، پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی رکن صوبائی اسمبلی ہے محمد اجمل خان چانڈیا ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر سیاستدان ہیں. ان سے پوچھ لیتے ہیں. سر پیٹرول کی قیمت کیا ہے آج؟ یہ سروے کر رہے ہیں. پیٹرول کی قیمت ابھی 15 روپے کم ہوئی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ مطلب کافی ڈیکریز ہوا ہے. اور آج کیا قیمت ہے لیٹر کی؟ یہ ایکچولی میرے خیال میں 278 پہ آ گئی ہے، 293 سے. یعنی اس سے کم ہے. دوبارہ سے پھر کر لیں اب ریکارڈ، اس کو ختم کریں. ٹھیک ہے. 274 روپے. 274. میں 273 گئی ہے. اچھا. تو 5 روپے کم ہوئے تھے نا وہ شاید. میں دیکھیں جب بھی کوئی لا بنتا ہے نا یا ایکٹ آتا ہے، اس کے پورے رولز اینڈ ریگولیشنز بنتے ہیں. تو جو رولز اینڈ ریگولیشن اس کے بنیں گے انشاءاللہ اس کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور یہ چیز انشور کی جائے گی کہ کسی کو بھی ناحق جو ہے نا کوئی اس میں انوالو نہ کرے. اگر کسی نے وہ کیس بنا بھی دیا ہے، وہ کیس فائل بھی کر دیا ہے، تو اس کا جو ٹرائل ہو وہ اتنا شفاف ہوگا انشاءاللہ کہ جس میں کسی کو بھی
आप ये ना समझें कि जो है ना उसको गैर कानूनी तौर पर या उसको किसी भी दबाव के तहत उसके ऊपर ये केस जो है ना उसको फाइनल किया जाएगा, बल्कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उसके तहत ये इंशाल्लाह हो रहा होगा फाइनल। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो हैं अरकान असम्बली यहाँ पे मौजूद है, उनसे हम बात कर रहे हैं। मैम ये बताइएगा कि जो हत्तके इज़्ज़त का केस अभी जो बिल जो यहाँ पे टेबल किया गया है, उसके अंदर क्या जो है वो सहाफ़ियों के हवाले से रखा गया है, सहाफ़ियों से क्या मसला हो रहा है, सियासतदान हों, कारोबारी जो भी लोग हैं उन्हें, और क्या इस बिल को मिसयूज़ नहीं किया जा सकेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, बिल्कुल भी मिसयूज़ नहीं किया जाएगा। देखिए ये एक बिल्कुल सीधी सी बात है कि सहाफ़ियों के मतलब बारे में पहले हम बात कर लें कि बाज़ औक़ात वो बड़े ही ना फ़ज़ूल किस्म के सवाल कर लेते हैं जिसपे वो बहुत ज़ातियात पे आ जाते हैं, ठीक है ना। वो बहरहाल आप अपने प्रोफेशनल के हिसाब से हमसे सवाल करें, जिससे भी करने, चाहे वो कारोबारी लोग हों, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे MPs हों, कोई भी हो। आप ज़ाती सवाल जब करेंगे तो फिर वो इज़्ज़त पे बात आ जाती है, तो इस हवाले से थोड़ा सा है। और बाकी नॉर्मल बस सहाफ़ियों के हिसाब से तो बस यही है कि सहाफ़ी ज़रा ज़ातियात पे बात ना करें, बाकी आप प्रोफेशनल जो बात करना चाहते हैं करें, हम उसका जवाब देंगे। और एक छोटा सा सर्वे है जो एक्सक्लूसिवली अरकान असम्बली के साथ हम कर रहे हैं कि आज पेट्रोल का जो रेट है 1 लीटर वो क्या है, वो पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। जी हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही एक और रुकन सूबाई असम्बली रुशिदा लोधी साहिबा मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैम जो हत्तके इज़्ज़त का बिल आया है, ये कितनी इसके अंदर फ़ायदा होगा और कितना इसको मिसयूज़ किया जा सकता है, कैसे इसको कंपैरिजन करेंगी, और इसमें अगर मिसयूज़ किया जाता है तो उससे बचाव के लिए क्या शिकें होंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि देखिए हत्तके इज़्ज़त का बिल हो या किसी भी किस्म का कोई भी लॉ जो होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि हर चीज़ के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। जिन लोगों का माइंड नेगेटिव होता है उसको नेगेटिव यूज़ करने की कोशिश करते हैं, जिनका पॉजिटिव होता है उसको पॉजिटिव यूज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हत्तके इज़्ज़त का जो लॉ है वो होना चाहिए, ऑलरेडी भी मौजूद है, और मज़ीद भी इसमें प्योरीफिकेशन जो होने जा रही है वो बेहतर है। और मैम आप हुकूमती पार्टी से, आपकी हुकूमत है इस वक्त, और रुशिदा लोधी साहिबा गुज़श्ता रात पेट्रोल की कीमत कम की गई है, हम एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं, आपको कीमत पता है 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या आज? मैंने पेट्रोल कभी डलवाया नहीं खुद एक्चुअली। थैंक यू। जी जो अरकान हैं आ रहे हैं, और ज़्यादातर अरकान जो हैं उनको पेट्रोल की कीमत नहीं पता, और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि कीमत में आए रोज़ उतार चढ़ाव होता है, और अब लोगों ने जो लीटर देख के पेट्रोल डलवाना भी छोड़ दिया, और लोग पैसे ही देते हैं कि 1000, 5000 या 10,000 का पेट्रोल डलवाया जाए। ये एक बड़ी वजह है जिसका वजह से जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो ज़्यादातर अरकान असम्बली को नहीं मालूम। जी हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सईद अकबर नुमानी साहब मौजूद हैं, रुकन सूबाई असम्बली हैं, सीनियर सियासतदान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर ये जो अभी हत्तके इज़्ज़त के हवाले से जो बिल आया, इस पर जो अपोजिशन है वो तनकीद करना शुरू हो गई है कि KP के बलोचिस्तान या सिंध में जाके कोई बंदा कुछ भी बोल दे उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकेगा, पंजाब में बोलेगा तो उसके खिलाफ ही सिर्फ एक्शन होगा, तो इसको किस तरीके से कैटर किया जाएगा? नहीं, वो तो ये है ना कि जिस थाने में कोई वकूआ होता है उसी में FIR कटती है ना। अगर वो कोई सिंध में करेगा तो वहाँ जो कानून होगा उसके मुताबिक वो डील करेंगे, जो पंजाब में होगा वो पंजाब में उसको इस जो कानून लेजिस्लेशन इस तरह डील करेंगे। अब कुछ सहाफ़ी हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, वो जाके हर किसी के खिलाफ तनकीद करते हैं, सारा कुछ होता है। अब इसका मतलब है जो सहाफ़ी इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाए या KP के या सिंध शिफ्ट हो जाए वो वहाँ बैठ के तनकीद करेगा, उसका फिर क्या हल होगा? उसका कोई हल नहीं है, उसका हल यही है कि वहाँ जो जहाँ वो बात कर रहा है वहाँ का कानून उस पर लागू होगा, पंजाब का तो क्योंकि वो उसकी हदूद में नहीं आएगा। तो ये तो है भी पंजाब में, जो पंजाब में कोई इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन या कोई जो भी उस कानून की रिक्वायरमेंट होगी वो उसके ख़िलाफ़ होगा तो डेफिनेटली फिर उसकी ज़द में आएगा। सईद अकबर नुमानी साहब, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आपकी हुकूमत है, गुज़श्ता रात बड़ा अच्छा एक फ़ैसला किया गया और पेट्रोल की कीमत कम कर दी गई है। हम एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं अरकान असम्बली से कि आपको मालूम है कि 1 लीटर पेट्रोल आज किस कीमत पे मिल रहा है? क्या जो पेट्रोल है, पेट्रोल पंप है, उसकी क्या कीमत है इस टाइम 1 लीटर की? 274-75 रुपये है या 278 समथिंग है। आज भी मैंने डलवाया है, हम तो रोज़ाना अपने पैसों से डालते हैं। तो आप ये मुस्लिम लीग नून से पहले ही रुकन असम्बली हैं जिन्होंने सही जवाब दिया, किसी को नहीं मालूम, इसकी क्या वजह होगी? क्यों? जो थे कोई 260 बता रहा था, कोई 280 बता रहा था। नहीं, वो हम तो रोज़ाना
डलवाते हैं और अपनी जेब से पैसे देते हैं, तो पता ये नून लीग से सईद अकबर नवानी साहब थे और बिल्कुल सही इन्होंने बताया है। इनको कीमत मालूम थी कि 273-74 रुपए इस टाइम पेट्रोल की फी लीटर कीमत है। कुछ पैसे हैं उधर। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली मलक अरशद साहब मौजूद हैं, साहिवाल से उनका ताल्लुक है, इजलास में शिरकत के लिए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, डेफेमेशन का, हत्या के इज़्ज़त का जो बिल यहाँ पे पेश किया गया है उसके ऊपर जल्द वोटिंग भी हो जाएगी और शायद वो पास भी हो जाए, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि वो पहले तो ये बता दें कि इस बिल में है क्या क्या शिकें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये मीडिया से मुतल्लक जो डेफर्मेशन का बिल है, इसमें आपको पता ना चाहिए जिस तरह मीडिया के जो मसाइल हैं और जिस तरह मीडिया रिप्रेजेंट करता है और जिस तरह मीडिया अपनी रिपोर्टिंग करता है, ये सारा जिस तरह हर चीज़ की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हर चीज़ को रेगुलेट किया जाता है, इस तरह ये डेफर्मेशन बिल है। और कोई ऐसी कोई बात नहीं है जो कोई ऐसा अमर माने नहीं है इस बिल में, और इसमें जो शिक्के हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो इसको मिसयूज़ नहीं किया जा सकता कि खबर तो चलाता है सहाफ़ी एक, अब कोई उसको मिसयूज़ भी कर सकता है, कोई भी हुकूमती पार्टी हो, आपकी हो या कल को कोई और हो, उसको अगर मिसयूज़ किया जाए तो उसमें सहाफ़ी की सेफ्टी के लिए क्या शिकें होंगी? देखें, बात यह है कि जहाँ पे आप सहाफ़ी की, मेरे लिए सहाफ़ी बहुत काबिल इज़्ज़त और एहतराम है, मेरे लिए मीडिया बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन जब सहाफ़ी किसी की इज़्ज़त को उछालता है तो वो बंदा भी काबिल इज़्ज़त होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों साइडों पे ये इज़्ज़त का फुकदान मौजूद था, जिसके लिए डेफर्मेशन बिल इस वजह से आया है। वो तो आ गया और सेफ्टी दे दी गई जिसकी पगड़ी उछाली जाती थी, लेकिन अगर कल को एक सहाफ़ी है वो पगड़ी नहीं उछालता, वो सही खबर देता है, सोर्स के साथ देता है, लेकिन उसके ऊपर अगर यही केस किया जाता है तो इसको मिसयूज़ तो हो जाएगा, उससे कैसे बचेंगे? मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, चूँकि मैंने वो बिल की एक एक शिक पढ़ी है, मैं उस कमेटी का हिस्सा हूँ। यहाँ पे किसी की पगड़ी इंशाल्लाह ना उछाली जाएगी, ना किसी सहाफ़ी को उससे कोई नुकसान होगा। सर, एक हम छोटा सा सर्वे भी कर रहे हैं साथ कि जो पेट्रोल है आज उसकी कीमत क्या है 1 लीटर की? यार, ये एक ऐसा सवाल है जो हर बंदे को मालूम है, जो अपने जेब से डलवाता है। ये सरकारी बंदों को नहीं पता होगा। मैं आज 273 रुपये में डलवा के लाया हूँ, ये ज़ेर में रखना। मैं वर्कर किस्म का MP हूँ और मैं पूरा हिसाब रखता हूँ, जो कि मैं अपने हलाल पैसों से डाल के लाता हूँ। जी बिल्कुल, मलिक अरशद साहब जो है उन्होंने सही बता दिया है कि 273 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल इस टाइम मिल रहा है, और उन्होंने क्या है वो अपनी जेब से पेट्रोल डलवा के लाए हैं। गुजारिश ये है कि बिल तो अभी टेबल हुआ है और अभी हम देख रहे हैं। हमें ये पहले उम्मीद थी कि ये हमें पहले चंद दिन पहले हमें ना दिया जाएगा और हम इसको पहले अच्छी तरह पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या है इसमें और उसमें कौन सी जो चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए और जो है और जो अगर करनी भी हैं उसका प्रॉपर जो है सब पूरे ऐवान के साथ जो है उनको पहले हम पूरा जो है उस पर बात की जाए और उस पर हम सब जो हैं हमारी जो पार्टी है हम उस पर अपना जो अमल जो है लाए अमल वो देंगे इंशाल्लाह बारे में। लेकिन अभी तक तो जो है वो मुझे इस बिल के अभी कुछ समझ नहीं आई कि ये क्या करना चाह रहे हैं। क्या ये अपनी जो आजकल चूँकि इनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो है कि अपना मुहिम चली हुई है उसको समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, या वाकई चाह रहे हैं इसमें कोई जो है ना ऐसा कोई बिल लाया जाए जो कि वाकई में जो है मतलब कि जो लोग अपने डिफेम होते हैं उनके लिए जो है ना बाकायदा जो है ना ये बिल जो है ना अपना। जी, रुकन सूबाई असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रुखसाना कौसर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। मैडम, ये जो हत्या के इज़्ज़त का केस आया है, इसको क्या समझती हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, क्यों ये है और किन के ख़िलाफ़ ये लाया जा रहा है? देखें जी, एक बात याद रखें, इज़्ज़तें सबकी साझी होती हैं और बेटियां भी सबकी साझी होती हैं। पंजाब ने तो माशाल्लाह ये एक कदम अच्छा उठाया है और इस पर अमल भी इंशाल्लाह होगा और CM माशाल्लाह बहुत काम कर रही हैं और हम मतलब बहुत खुशनसीबी अपनी समझते हैं कि ये बिल जो आ रहा है ये हम सब के लिए, इसमें सहाफ़ियों को भी फेवर मिलेगी क्योंकि आप लोग भी बहुत मेहनत करके एक सहाफ़त करते हो, एक अच्छी खबर लेके आते हो। तो जब कोई नेगेटिव मतलब बंदा जो होता है वो आप पे भी उठ के ऐसे कर देता है अटैक, तो ये हम सब की सेफ्टी के लिए और ये अच्छी एक मतलब चीज़ हो रही है। और अगर ये हो रहा है तो हम सबको खुश होना चाहिए कि जिस तरह से CM साहबा अब काम कर रही हैं और एक अच्छा काम कर रही हैं, तो सबको सराहना चाहिए और हम इस बिल से तो बहुत खुश हैं और इंशाल्लाह मंडे को ये टेबल भी होगा। मैडम, ये रुखसाना कौसर साहिबा, नून लीग से आपका ताल्लुक़ है। नून लीग ने गुज़श्ता रात जो पेट्रोल की कीमतें हैं उनमें कुछ तब्दीली की है, तो वो आपको आइडिया है कि पेट्रोल इस टाइम किस कीमत पे 1 लीटर मिल रहा है और उससे क्या फ़ायदा हो? वो इस तरह से है कि पेट्रोल की कीमत जब से गवर्नमेंट में बनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी दफ़ा कम की है,
पिछली दफ़ा भी पेट्रोल और डीजल को सस्ता किया, अभी भी किया। इसके अलावा बाकी बहुत सारी चीज़ें सस्ती की हैं, आटा सस्ता किया, रोटी, बाकी चीज़ें सस्ती हुई हैं। इसी तरह दीगर चीज़ें भी होंगे। मुर्गी बहुत महंगी थी, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हर सब्ज़ी में थोड़ी बहुत मुर्गी इस्तेमाल करे, तो वो भी सस्ती की है। सब चीज़ें सस्ती हो रही हैं इंशाल्लाह। 5 साल गाड़ियाँ भी सस्ती हुई। गवर्नमेंट जो है इंशाल्लाह आने वाले ये जो हमारे दिन हैं 5 साल जब तक पूरे होंगे तो इंशाल्लाह महंगाई जो है जिस सतह से हमने उठाई है इसको मतलब अब ये दोबारा उसी सतह पे वापस आ जाएगी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं, रुखसाना कौसर साहबा भी हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरह पेट्रोल की कीमतें कम की गई, बाकी अशिया की कीमतें भी नीचे आ रही हैं और इसका फ़ायदा आवाम को होगा। और डेफेमेशन केस के हवाले से उन्होंने यही कहा कि जो लोग गलत खबर देते हैं उनको इससे जो है नुकसान पहुँचेगा और उन्हें पहुँचना चाहिए, क्योंकि वो गलत खबर दे रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, और जो तहकीकाती सहाफ़त कर रहे हैं, सही खबर दे रहे हैं, उनको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, रुकन सूबाई असम्बली हैं, शेख इम्तियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बिल जो है वो टेबल किया गया है डेफेमेशन के हवाले से, क्या ख़तरा था बिल पेश करने वालों को, सहाफ़ियों से, कि ये बिल ही लाना पड़ेगा और इसको क्या मिसयूज़ नहीं किया जा सकेगा? ये मिसयूज़ बाय द गवर्नमेंट, बाय द स्टेट, ये ऐसा बिल है कि अगर आप पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऑलरेडी बिल जो है वो पंजाब पाकिस्तान में मौजूद है। डिफेमेशन लॉ जो है 2022 वो मौजूद है, पीका एक्ट 2016 भी मौजूद है। और ये पंजाब की जो आवाम है, ये स्पेशली सिर्फ़ और सिर्फ इसको टारगेट करने के लिए ये बिल जो है वो लाया जा रहा है। यानी कि अगर आप ने किसी की डिफेमेशन करनी है तो जस्ट कराची जाके उसकी डिफेमेशन कर दें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अभी आप KPK में जाएं, इस्लामाबाद में जाएं, उसकी मिट्टी पलीत कर दें, कुछ नहीं होगा। और जब आप अगर पंजाब में अगर करेंगे रह के तो फिर वो होगा। और इसी तरह उन्होंने कहा है जी कि जो प्रोसीडिंग्स जो हैं उसको जो है वो पे कमेंट नहीं किया जा सकता। आप KPK में जाके कमेंट कर दें। और फिर जजों की भर्ती जो है वो गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली है कि हम भर्ती करेंगे, और यानी यही है कि हम ही विक्टिम होंगे, हम ही जो है वो जज होंगे, वो हम ही। कभी इस तरह नहीं हुआ कि गवर्नमेंट जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे भी एक हमला है। ये सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पे, जो क्योंकि आम मीडिया पे इन्होंने फुल कंट्रोल कर लिया हुआ है। आम मीडिया बेचारा कुछ नहीं दिखा सकता, कुछ नहीं बोल सकता, जो ऊपर से हुक्म आता है बग़ैर किसी चीज़ के उन पर अमल हो जाता है। सोशल मीडिया को काबू करने के लिए, और वो भी स्पेशली बाकी जो 3 सूबे हैं उनकी आवाम जो वो शुक्र अदा कर रही है कि मरीम नवाज़ साहबा इधर नहीं है। और ये सिर्फ मरीम नवाज़ साहबा क्योंकि इधर हैं, इसलिए उन्होंने कहा था मैं रुथलेस हो जाऊंगी, तो ये जो बिल है वो इसका एक हिस्सा है। सर, एक छोटा सा सर्वे हम कर रहे हैं अरकान असम्बली से, और ज़्यादातर उसका जवाब नहीं दे पा रहे। पेट्रोल की आज 1 लीटर की कीमत क्या है? 274 रुपये। ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि PTI के जो अरकान हैं उनको मालूम है कीमत, और जो नून लीग के अरकान हैं उनको कीमत मालूम नहीं है। हमने पूछी अरकान पंजाब असम्बली से फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत, और ज़्यादातर अरकान असम्बली इसका सही जवाब नहीं दे सके, और कई तो बिल्कुल खामोश हो गए। जबकि हत्ते के इज़्ज़त के बिल के हवाले से सवाल पे शेख इम्तियाज़, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने एक बड़ा मजबूत सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पंजाब में तो हत्ते के इज़्ज़त का केस हो जाएगा, लेकिन अगर कोई सहाफ़ी या कोई शख्स KPK, सिंध या बलूचिस्तान में ऐसी बात करता है तो उसके खिलाफ एक्शन कैसे और क्या लिया जाएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उस्मान खादिम कंबो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।